how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is further on Adobe Photoshop CC. Now we are going to study something extra about the Photoshop CC. Now here we are going to talk about the painting tools, retouching tool, drawing and type tool. Then we are going to talk about shape and line tool, navigation tool, image tabs and layers. So let's start here. In previous chapter, we have learned how Adobe Photoshop CC is used for editing and making enhancement to the elements of an image. हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे को किस में हेल्प करता है, किन किन चीज़ों में Adobe Photoshop CC यूज हेल्प करता है एनहांस करने में हमारी इमेजेस को, टू मेक इट लुक बेटर एंड अट्रैक्टिव, जिससे हमारी इमेजेस जो है बहुत ज़्यादा बेटर लगे और अट्रैक्टिव लगे. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम मोर टूल्स व्हिच आई यूज इट Photoshop CC. Here is one of them, painting tools. So first one is brush tool. The brush tool is a primary painting tool. जो brush tool होता है आपका primary painting tool है. It works like a traditional drawing tool. ये कैसे help करता है? आपके traditional drawing tool की तरह help करता है. कैसे? By applying color using strokes. आप अपने इनके strokes को use करके colors को apply कर सकते हो. It's located in a standard toolbar. कहाँ पे located है ये? Standard toolbar में located है. And its default shortcut is the letter B. इसका shortcut क्या है? Letter B होता है shortcut इसका. It works by adding a shaped mark on a layer. ये कैसे work करता है? Shape mark up करके layer पे. And if you continue pressing the mouse button, अगर आप continue करोगे press करते हो mouse button को, ये क्या करेगा? और the pen को on a tablet, several marks will be added. बहुत सारे marks इसमें edit हो जाएंगे. Creating a stroke. अब stroke कैसे create करता है? वो एक stroke भी create कर देगा until you release the pressure. जब तक आप pressure को release नहीं करोगे, stroke भी create कर देगा. The essential option for the paint tool in Photoshop are brush tip shape. सबसे ज़्यादा essential tool क्या है? Brush के tip की shape कैसी हो रही चाहिए? Blending, mode and opacity and flow. So you can follow the given steps to use the brush tool. अगर आपको brush tool को use करना है, you can follow some of the steps. The very first is select the part of the image where you want to use the brush tool. आपको वो part select करना है आपकी image पर जहाँ पे आपको अपने brush tool को use करना है. With the help of a selection tool of your preference. Now select the brush tool from the tool panel. आपको select करना है brush tool को अपने tool panel से. And select करना है brush style according to your preference. Brush style को select करना है अपने preference के accordingly यूज करते हैं ब्रश सेटिंग पैनल्स को. सेट द फोरग्राउंड. आपको अपने फोरग्राउंड को भी सेट करना है एंड बैकग्राउंड कलर्स को भी सेट करना है. टू अप्लाई द ब्रश स्ट्रोक, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस. अगर आपको अप्लाई करना है ब्रश स्ट्रोक को, आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने माउस को अपने सेलेक्टेड एरिया के ऊपर. देन यू कैन ऑब्जर्व इट्स एप्लीकेशन. आप देख सकते हो कि कैसे वो अप्लाई होता है. नाउ you can press and keys to increase and decrease brush size effect respectively. आप keys को press कर सकते हो brush size को increase करने के लिए या decrease करने के लिए. Here is the pencil tool. We use the pencil tool in the Photoshop CC. हम pencil tool को use करते हैं Photoshop CC में to make free form drawing को बनाने के लिए. The pencil tool differ from the brush tool in that pencil tool जो होता है prefer different tools में prefer करता है पेंसिल से एंड हार्ड एजेस को सिलेक्ट कर लेता है बाय डिफॉल्ट. नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज अ पेंसिल टूल. आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो पेंसिल टूल को यूज करने के लिए. द वेरी फर्स्ट इज टू एक्सेस द पेंसिल टूल. फर्स्ट राइट क्लिक. अगर आपको एक्सेस करना है अपने पेंसिल टूल को, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है ऑन द ब्रश टूल इन टूल्स पैनल्स. राइट क्लिक करना है आपको ब्रश टूल पे जो आपके टूल्स पैनल में गिवन है. एंड देन फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपीयर सेलेक्ट करना है आपको पेंसिल टूल को. जो ऑप्शंस आपके सामने अपीयर होंगे वहां से आपको पेंसिल टूल को सिलेक्ट करना है. देन सेट द फोरग्राउंड कलर्स इन द टूल पैनल. आपको फोरग्राउंड कलर्स को सिलेक्ट करना है अपने टूल पैनल्स में. प्लेस द माउस पॉइंटर इन द वर्क स्पेस. आपको माउस पॉइंटर को वर्क स्पेस में प्लेस करना है. लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने माउस को, कलर करना है रिप्लेसमेंट टूल को. Now the color replacement tool is used to change the color. जो color replacement tool है किससे यूज होता है? चेंज करने के लिए कलर को आपके ऑब्जेक्ट के in the photos easily. We use the color replacement tool in Photoshop CC. हम यूज करते हैं color replacement tool को किसमें? Photoshop CC में.
sees to substitute the currently applied color, उसके same color को substitute करने के लिए with the color set in a foreground. To use the color replacement tool, follow the given step. अगर आपको color replacement tool का use करना है, you can follow some of the steps. The doing first is right click on the brush tool. आपको brush tool पर right click करना है, select करना है अपने color replacement tool को कि कौन सा color आपको replace करना है from the option that appears. Now then set a foreground color. आपको foreground color को select करना है, set करना of your preference in the tools panel. You can also set a color from the image. आप select भी कर सकते हो, color को set कर सकते हो, color अपनी image में से. You are working जिस image पर आप work कर रहे हो on by pressing and holding alt key. कैसे करके? Press करके hold करके alt key को and left clicking the mouse on the part of the image whose color you want to use. जिसका color आपको use करना है. Left click and drag the mouse. आपको left click करना है, drag करना है mouse को over the part of the image, उस part के image के ऊपर where you want to replace the color, जिसके color को आपको replace करना है. Now mixer brusher tool. What is this? Mixer brush tool. So the mixer brush tool is used to paint a particular part of the image. ये किस लिए use होता है? एक आपकी image की particular part को color करने के लिए, paint करने के लिए, in such a way that it has a realistic appeal. जैसे वो realistic लगे. It blends the color of the brush, adding a certain texture. ये blend करता है color आपके brush के, add करके बहुत सारे textures को with every stroke that is applied. Follow the given steps to use mixture brush tool. आप कुछ step को follow कर सकते हो mixture brush tool को यूज करने के लिए. फर्स्ट है राइट क्लिक करना है आपको ब्रश टूल पे, अपने टूल्स पैनल पे सेलेक्ट करना है मिक्सर ब्रश टूल को फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपीयर. देन डिसाइड करना आपको कलर्स अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. यू कैन टेक इट फ्रॉम द इमेज. आप उस इमेज में से भी ले सकते हो इटसेल्फ और सेट कर सकते हो एक न्यू कलर फोरग्राउंड कलर ऑप्शंस इन द टूल पैनल्स. देन क्लिक करना है आपको, ड्रैग करना है माउस को ओवर द पार्ट ऑफ इमेज वेयर यू वांट टू अप्लाई द कॉम्बिनेशन. उस पार्ट के ऊपर ड्रैग करना है जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है कलर्स का. यू हैव सेट फॉर योर ब्रश. नाउ रीटचिंग टूल. रीटचिंग टूल क्या होता है? The use of retouching tool in Photoshop CC is to enhance or change the appearance of an image. ये किस लिए यूज है? enhance करने के लिए, change करने के लिए appearance आपकी image का. The tools helps patch the scratches. ये किस लिए यूज होता है? help करने में, patch करने में scratches, bumps और other imperfections जो भी आपकी image पे होती है. image में से some of the retouching tools are blur tool. कुछ retouching tools है blur tool हो गया, eraser tool हो गया, dodge tool हो गया, spot healing brush tool हो गया, clone stamp tool हो गया. Let's learn more about the different retouching tools. So spot healing and healing brush tool क्या होता है? When working in Photoshop CC, there can be certain elements. बहुत सारे elements हो सकते हैं यहाँ पे in an image such as dark spot. जैसे dark spot हो गया, blemishes हो गया, जो आपको require करता है remove करने में, जो आप blemishes को remove कर सकते हो. This is where the spot healing brush tool comes into use. यहाँ पे आप spot healing brush tool को use कर सकते हो जो blemishes को remove करने के लिए. The tool uses the sample pixels. किसको use करता है? Sample pixels को use करता है from around the area to blend the imperfection out. जो जैसे imperfection है इसको blend करने में उस area को भी same ऐसा कर देगा. Now follow the given steps to use the spot healing tool. आप given steps को use कर follow कर सकते हो spot healing tool को use करने के लिए. सबसे पहले आपको क्या करना है? spot healing brush को tool को from the tool panel select करना है. Then left click करना है, drag करना है over the spots in the image. जो spots है left click करते हुए drag कर देना उन spots के ऊपर जो आपको रिपेयर करने हैं. You can adjust the size of the brush. adjust कर सकते हो brush का size क्लिक करके increase करने के by increasing or decreasing the size on the pop-up box. Now the healing brush tool also works like the spot healing brush tool. जो healing brush tool है कैसे work करता है? spot healing brush tool की तरह work करता है. The prime difference between the two is that healing brush tool needs a source point. जो prime difference क्या होता है? जो brush healing brush tool होता है इसका source point चाहिए होता है cover up करने के लिए unwanted element जो आपकी present है आपकी image में. The source point can be set by holding. कैसे set कर सकते हो source point को? Alt key को press करके and click करते हुए preferred parts of the image पे. Now patch tool. The patch tool enables the user to repair the flaws of an image. कैसे क्या करता है? पैच टूल इनेबल करता है कि यूजर को रिपेयर करने के लिए जो भी फ्लॉज है आपकी इमेज में ऐड करके फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इमेज. मतलब पैच ऐड कर देता है दूसरे पार्ट्स आपकी इमेज के दूसरे पार्ट से वहाँ पे. द एरिया ऑफ रिपेयर इन द इमेज कैन बी डिफाइंड बिफोर द कंटेंट
for repair is added. Follow the given steps to use the patch tool. आप given steps को follow कर सकते हैं patch tool को यूज करने के लिए. फर्स्ट आपको राइट क्लिक करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे, देन फिर सेलेक्ट करना है आपको पैच टूल को फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन दैट अपीयर. जो भी डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाएंगे. प्लेस करना आपको माउस को ऑन द एरिया वेयर द रिपेयर्स हैज टू बी मेड. आपको प्लेस करना है माउस को जहाँ पे आपको रिपेयर्स करने हैं अपनी इमेज पे इन द इमेज. देन लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रॉ करना है लाइन अराउंड दैट पार्ट ऑफ द इमेज. नाउ ड्रैग करना है द एरिया विद इन द सिलेक्शन लाइन्स, जो भी एरिया आपके सिलेक्शन लाइन्स के अंदर, और टू द पार्ट ऑफ द इमेज विच यू वांट टू यूज. जो इमेज जो पार्ट आपको यूज करना है अपनी इमेज का एज द रिप्लेसमेंट एंड रिलीज द माउस बटन. उस रिप्लेसमेंट की तरह यूज करिए, देन रिलीज कर देना अपने माउस बटन को. नाउ कंटेंट अवेयर मूव टूल. We use the content aware move tool to move a part of the image. एक इमेज के एक पार्ट को मूव करने के लिए हम यूज करते हैं while replacing the part previously covered by the image. जो previously covered image की उसको replace करते हुए with the element which can match and blend. जो element match भी कर सकता है, easily उसके साथ blend भी हो सकता है. Follow the given steps to use content aware move tool. So the way first step is select the content aware move tool. आपको select करना है content aware move tool को and select by after selecting the spot healing brush tool. फिर आपको content aware move tool को select करना है, then click करना है, drag करना है mouse pointer को over the area of the image. जो भी area है आपकी image के ऊपर का, this is to be moved to another place. जो आप दूसरे place पे move करना चाहते हो अपनी image में. When the image is moved, the space left behind by the image is covered. जब image move करती है, जो space left behind होता है वो cover हो जाता है with different colors element of its surrounding. Now clone stem tool. The clone stem tool is used to replicate a part of image. ये किस लिए यूज होता है? replicate करने के लिए इमेज के पार्ट को by copying the pixels of that part. copy करके उस पिक्सल को, उस पार्ट के पिक्सल्स को and creating a copy in another part. और दूसरे पार्ट में को क्रिएट कर सकते हो copy of the image. That is you can clone areas of an image. आप clone कर सकते हो areas अपनी image का to another part of an image. Now follow the given step to use this tool. आप कुछ steps को follow कर सकते हो इस tool को use करने के लिए. Here क्लिक करना है, आपको सेलेक्ट करना है क्लोन स्टेप टूल्स को फ्रॉम द टूल्स पैनल. आफ्टरवर्ड प्रेस करना है, होल्ड करना है ऑल्ट की को, देन लेफ्ट क्लिक करना है ऑन द एरिया वेयर द टारगेट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ कॉपिंग द इमेज इज सिचुएटेड. जहाँ पर टारगेट ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो होता है आपकी कॉपी, जो आप सब्जेक्ट होता है अपनी कॉपी जिस इमेज को कर रहे हो वो सिचुएटेड होता है. प्लेस करना है आपको माउस कर्सर को वेयर द इमेज इज टू बी कॉपीड. जहाँ पे आपको इमेज को कॉपी करना है वहाँ पे अपने माउस कर्सर को प्लेस करना है, देन राइट क्लिक कर देना है और ट्रैक करना है. Also observe the plus sign that appears over the image you are copying. आप ऑब्जर्व करोगे प्लस साइन इमेज अपीयर होगा उस इमेज के ऊपर जो आप कॉपी कर रहे हो. द प्लस साइन इंडिकेट दैट द पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज बीइंग कॉपीड. ये क्या इंडिकेट करता है? वो पार्ट इमेज का जो कॉपी हो रहा है. नाउ डू यू नो द पैटर्न स्टैम्प टूल इज यूज्ड टू अप्लाई सिलेक्टेड पैटर्न. जो पैटर्न स्टैम्प टूल होता है किस लिए यूज होता है? सब अप्लाई करने के लिए सिलेक्टेड पैटर्न को इन एन एरिया और सेक्शन ऑफ द इमेज. Now blur tool. Blur tool किस लिए यूज होता है? The blur tool is used to add a blurred effect in on around the image. ये किस लिए यूज होता है? Blur effect को डालने के लिए आपके इमेज के अराउंड में. To use the blur tool, follow the given step. The very first step is क्लिक करना है आपको blur tool पे अपने tools panel में से, then set करना है brush size को and the strength of the brush. Then place करना है cursor on the area of the image. cursor को place करना है आपकी इमेज के एरिया के ऊपर which is to be blurred, जिसको आपको blur करना है. then left click कर देना है, drag करना है. Now sharpen tool. The sharpen tool is used to enhance the clarity of the image. ये किस लिए यूज होता है? enhance करने के लिए clarity आपकी इमेज की by making the edges and outlines of the image in focus. कैसे करके images को जो edges होते हैं, outlines होते हैं, उनको focus में लाने के लिए like this. So clearly जो आपके focus में है, it is used in the similar manner as blur tool. ये blur tool की तरह यूज होता है. To use this tool, right click करना है आपको blur tool पे, बटन पे in the tools panel. एंड देन सेलेक्ट करना है वहाँ से आपको शार्पन टूल को, देन क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस को उस एरिया के ऊपर इमेज के जो आपको शार्पन करना है. ना स्मज टूल. द स्मज टूल अलाउ द यूजर टू स्मज द इमेज. ये क्या होता है? आपके इमेज को स्मज कर देता है, मिक्स कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक. स्ट्रोक की डायरेक्शन है. इट इज ऑल्सो यूज इन द सेम मैनर ऑफ ब्लर टूल. ये ब्लर टूल की तरह यूज होता है. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द टूल द माउस हैज टू बी क्लिक्ड. सेलेक्ट करिए इस टूल को, माउस को आपको क्लिक करना होता है, ड्रैग करना होता है प्रेफर्ड पार्ट पे इमेज के इन अ स्ट्रोक फ्रॉम द क्रिएट स्मज इफेक्ट. Now, do you know the burn tool can also be
यूज टू ऐड डार्क एलिमेंट्स। ये किस लिए यूज हो सकता है? डार्क एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आपके उस एरिया ऑफ द इमेज पे। नाउ ड्राइंग एंड टाइप टूल। ड्राइंग एंड टाइप टूल क्या होता है? सो टाइप टूल क्या होता है? ये टाइप करने के लिए यूज होता है एलिमेंट टेक्स्ट को। द नेम सजेस्ट टाइप टूल, टी। ये इनेबल करता है एक यूजर को ऐड करने के लिए टेक्स्ट टू देयर वर्क। वो अपने वर्क पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लाइक देयर नेम और एनीथिंग अबाउट और रिगार्डिंग द पिक्चर। So the properties of text tool, text is to be used can the properties of text to be used can be changed to meet the preference of the user. आप text के जो properties होते हैं इनको अपने एक user अपने preference के according इनको change भी कर सकता है. To use the type tool, follow the given steps. सबसे पहले आपको select करना है type tool को अपने tools panel में से. Then click करना है आपको part of the image पे where you want to type the text. जहाँ पे आपको अपने text को type करना है, then वहाँ पे आपको typing start कर देनी है. To stop typing, either left click outside the workspace and click करना है आपको बटन पे इन ऑप्शन बार. Now creating warp text. warp text कैसे create करते हैं? So creating warp text refers to the application of different structure. ये क्या किससे relate करता है? Application जो होते हैं आपके different structures की shapes की to the letters of the text added in Photoshop CC. The features allow the user to paste. ये user को क्या करता है? ये feature allow करता है user को paste के लिए set करने के लिए distort करने के लिए the type text in the interesting shape. जो type text है उसको interesting shapes में लाने के लिए. On one notable thing about the wrap text is that it remains the same editable text. जो एक notable चीज़ है वो same रहता है इस टूल के रिगार्डिंग. जो नोटेबल चीज़ है रैप टेक्स्ट के रिगार्डिंग कि सेम रहता है एडिटेबल टेक्स्ट में लाइक बिफोर. दैट इज इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू पिक्चर और पिक्सल. ये पिक्चर और पिक्सल में कन्वर्ट नहीं होता. टू क्रिएट दिस रैपिंग टेक्स्ट इफेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. टाइप टेक्स्ट वर्ड क्या है? आपको टाइप करना टेक्स्ट यूज करके टाइप टेक्स्ट टूल को. आफ्टरवर्ड्स नाउ सेलेक्ट करना को टेक्स्ट को यू वांट टू ऐड रैप इफेक्ट. उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको ऐड रैप इफेक्ट डालना है. देन क्लिक करना है रैप warped text पे. The warp text dialog box will appear. warp text dialog box appear हो जाएगा ऑप्शंस के साथ, जैसे स्टाइल बैंड, स्टाइल हो गया, बैंड हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन हो गया, vertical distortion हो गया. When the required adjustments or settings have been made, जो required adjustment होती है settings हो चुकी है आपके text में, then आपको press कर देना ओके पे. The warp effect will be applied. जो warp effect होगा वो आपके text पे apply हो जाएगा like this. Now let's talk about shape and line tool. Shape और line tool क्या होता है? So we use these tools to make various shapes. हम इस tools को use करते हैं बहुत सारी shapes को बनाने के लिए, line based custom drawing करने के लिए. These tools give you more drawing ability. आपको बहुत सारी drawing की ability देता है. They allow you to add vector based graphics. आपको allow करता है add करने के लिए vector based graphics को, shapes को to your layout. Photoshop CC has 6 shape tools. जो Photoshop CC होता है इसमें 6 shapes tools होते हैं. So first one is rectangle tool, round rectangle tool, then ellipse tool, then polygonal tool, line tool, and the custom shape tool. The custom shape tool is the last one. So to use shape and line tool, follow the given step. अगर आपको shape और line tool को use करना है, आपको कुछ steps को follow करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है अपने रेक्टेंगल टूल पे, प्रेजेंट जो है आपके टूल पैनल पे, एंड सेलेक्ट करना है टूल अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. देन प्लेस करना है माउस पॉइंटर को वर्क स्पेस पे, एंड देन लेफ्ट क्लिक करना है. अपने माउस पॉइंटर को वर्क स्पेस पे प्लेस करके आपको लेफ्ट क्लिक करना है. देन ड्रैग करना है अपने माउस को, क्रिएट करते हुए इमेज एंड एडजस्ट करना है उसको साइज को. यू कैन चेंज अदर प्रॉपर्टीज. आप दूसरी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो शेप्स की, जैसे आपकी कलर हो गया, टाइप ऑफ स्ट्रोक हो गया, अलाइनमेंट्स हो गया, टाइप्स ऑफ कॉर्नर्स हो गया. You can access more shapes. आप बहुत सारी shapes को भी access कर सकते हो अपने shapes drop down option से. In the custom shape selection, similarly you can use other shapes line tool. आप इसी तरह से other shapes line tool को भी use कर सकते हो. Now let's talk about navigation tools. So the navigation tools in Photoshop CC enables the user to zoom in. ये enable करता है यूजर को zoom in करने के लिए और out करने के लिए इमेज को और पेन को, and scroll and already enlarged image. Let's learn further about navigation tool. The very first is zoom tool. The zoom tool is used to zoom in. एक किससे यूज होता है? zoom in करने के लिए एक इमेज को and or in zoom in and out of an image. So left clicking on the screen after selecting the zoom tool will zoom in the image. अगर आप left click करोगे
सो टूल को सिलेक्ट करके वो जूम इन कर देगा आपकी इमेज में। वाइल लेफ्ट क्लिकिंग वाइल कीपिंग द ऑल्ट की प्रेस, अगर लेफ्ट क्लिक करते हो ऑल्ट की को प्रेस करोगे वो जूम आउट कर देगा आपकी इमेज में से। इफ द साइन इन द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ द कर्सर इज प्लस, जो साइन है द मैग्नीफाइंग ग्लास का वो कर्सर में प्लस है साइन, दैट इट इंडिकेट द क्लिकिंग दैट क्लिकिंग द लेफ्ट माउस विल जूम इन। अगर प्लस का साइन है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आप जूम इन कर जाओगे इन द इमेज, एंड इफ द साइन इज माइनस, अगर साइन माइनस है तो मतलब आप जूम आउट कर जाओगे उस इमेज में से। द करंट जूम लेवल इज डिस्प्लेड इन द डॉक्यूमेंट, जो करंट जूम लेवल है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, डॉक्यूमेंट टैब में जो डिस्प्ले होता है अबव द इमेज एंड ऑल्सो नेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट नेम ऑन द राइट, जो डॉक्यूमेंट नेम होगा उसके राइट में भी डिस्प्ले करता है। Now, hand tool. What do you mean by hand tool? The hand tool in Photoshop CC enable the user to move an image. ये enable करता है user को move करने में image को, which is too large, जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, to be seen at the once when an image is zoomed in. जब एक image zoom in होती है, एक part जो होता है of it is visible, उसका एक part visible होता है at a time. The rest of the image lies outside the screen limit. Yes, जब आप zoom in करोगे जो rest of the image है वो screen limit के बाहर हो जाती है। So when you reposition an image, फिर से आप उस इमेज को रिपोजिशन करते हो, मतलब मूव करते हो, मूव इन करते हो उसे डिफरेंट एरिया ऑफ द इमेज पे, इट इज कॉल्ड पैनिंग। उसे अब क्या कहते हैं, पैनिंग कहते हैं। यू यूज द हैंड टूल टू पैन, आप हैंड टूल को यूज करते हो ना उसे फैन करने के लिए, दूसरे इमेज पे दूसरे पार्ट पे जाने के लिए उस इमेज की। यूजिंग दिस टूल रिक्वायर्स द यूजर टू होल्ड द लेफ्ट माउस, अगर आप इस टूल को यूज करते हो अलाउ करता है यूजर को लेफ्ट माउस को होल्ड करने के लिए, बटन को, एंड ड्रैग करने के लिए माउस को इन द डायरेक्शन इन विच द इमेज इज टू बी मूव, उस डायरेक्शन मूव करने के लिए इसमें इस इमेज को आपको मूव करना है ना। इमेज टैब एडजस्टमेंट ऑप्शन, द एडजस्टमेंट ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ इमेज टैब, ये एक पार्ट है आपके इमेज टैब के फोटोशॉप सीसी के। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ गिवन ऑप्शंस, में बहुत सारे गिवन ऑप्शंस होते हैं। दे हेल्प अस टू अप्लाई डिफरेंट एनहांसमेंट टू आवर वर्क, ये अलाउ करता है, हेल्प करता है अप्लाई करने में डिफरेंट एनहांसमेंट आपके वर्क पे इन फोटोशॉप सीसी। एडजस्टिंग ह्यू एंड सैचुरेशन, ह्यू और सैचुरेशन कैसे करते हैं। द ह्यू ऑफ एन इमेज refers to the color in the image, किससे रेफर करता है, जो आपके इमेज के अंदर कलर्स होते हैं उससे रेफर करता है। The saturation is the intensity of the that color, saturation क्या होता है, इंटेंसिटी होता है उस कलर की। Adjustment of hue and saturation helps in improving the colors, किस में हेल्प करता है, क्या किस में हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में, कलर्स जो अप्लाई होते हैं एंड देयर इंटेंसिटीज को इम्प्रूव करने में। लेट्स लर्न हाउ टू एडजस्ट ह्यू, अब हम सीखेंगे कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ह्यू को एंड सैचुरेशन को अपने वर्क में। फर्स्ट इज यूज द सिलेक्शन टूल, आपको सिलेक्शन टूल को यूज करना है सिलेक्ट करने के लिए उस पार्ट ऑफ द इमेज को whose hue and saturation you want to modify, जिससे hue और saturation को आपको modify करना है और the image as a whole. Now go to the image tab, आपको image tab पे जाना है, adjustment options में select करना है hue saturation को। The hue और saturation dialog box आपके सामने appear हो जाएगा। Make adjustment, आप adjustment कर सकते हो given settings पे according to your preference, अपने preference के according press करना है आपको OK पे। You will observe the changes that have taken place, आप देखोगे इसमें बहुत सारे changes जो हो चुके हैं according to your settings. Now let's talk about layers. Layers in Photoshop CC holds the various objects. इसमें क्या होता है, लेयर्स जो होती है आपकी फोटोशॉप सीसी में, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपने वर्क स्पेस पे। डिवाइडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट लेयर्स, अगर डिवाइड करना है आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट लेयर्स में अनेबल करता है वर्क करने में, हमको वर्क करने के लिए एज वन ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द अदर, एक ही ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, जिस पर हम वर्क करें सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा। द पैनल इन द लेफ्ट डाउनवर्ड कॉर्नर शोज द लेयर, जो पैनल होता है लेफ्ट डाउनवर्ड कॉर्नर में वो क्या शो करता है, लेयर शो करता है दैट हैव बीन स्टैक्ड फॉर द वर्क। लेट्स लर्न मोर अबाउट लेयर्स। सो हियर इज द एडिंग अ न्यू लेयर, अब हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट इज एडिंग अ न्यू लेयर, न्यू लेयर को हम कैसे ऐड करते हैं। सो द फर्स्ट न्यू लेयर इज क्रिएटेड अपॉन द एडिशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट, कैसे क्रिएट होती है ये, ऐड करके, किसके ऊपर क्रिएट होते हैं, एडिशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट में। देयर आफ्टर टू ऐड अ न्यू लेयर, अगर आपको दूसरी लेयर ऐड करनी है यू हैव टू गो टू द लेयर टैब, आपको लेयर टैब पे जाना है, देन सेलेक्ट करना है लेयर इन न्यू ऑप्शंस को, न्यू लेयर टैब विल अपीयर, एक न्यू लेयर का टैब आपके सामने अपीयर हो जाएगा। मेक योर एडजस्टमेंट, आप यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो एंड टाइप कर सकते हो लेयर नेम, टाइप करना है आपको लेयर नेम।
सो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो एड न्यू लेयर इन द लेयर पैनल्स, या फिर आप क्या कर सकते हैं, न्यू लेयर को ऐड कर सकते हैं लेयर पैनल्स में बाय क्लिकिंग ऑन द दिस बटन। इस बटन पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो। अ लेयर कैन बी रीनेम्ड, एक अपनी लेयर को आप दूसरा नेम भी दे सकते हो बाय सिंपली डबल क्लिकिंग ऑन इट। इस पर डबल क्लिक करके आप अपनी लेयर को दूसरा नेम भी दे सकते हो लेयर पैनल्स में जाके। नाउ रिमूविंग अ लेयर, अब लेयर को रिमूव कैसे करते हैं, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रिमूव एन एक्सिस्टिंग लेयर। लेफ्ट क्लिक करना है आपको, सिलेक्ट करना है लेयर्स को यू वांट टू रिमूव, देन राइट क्लिक करना है फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपीयर। राइट क्लिक करने के बाद जो करना है आपको, जो ऑप्शंस आपके सामने अपीयर होंगे, देन सेलेक्ट करना है आपको डिलीट लेयर पे। लेयर इफेक्ट्स क्या होता है, लेयर इफेक्ट्स आर डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं विच कैन बी अप्लाइड टू अ लेयर, जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लेयर में एंड इट्स कंटेंट। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एड लेयर इफेक्ट, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है गिवन स्टेप्स को ऐड करने के लिए लेयर इफेक्ट में। चूज करना है आपको लेयर को टू विच यू वांट टू ऐड लेयर इफेक्ट, आपको उस लेयर को चूज करना है जिसमें आपको इफेक्ट्स डालने हैं। सो देन सेलेक्ट करना है आपको एड अ लेयर स्टाइल बटन को, जो ये बटन है इसको सेलेक्ट करना है इन द लेयर पैनल। देन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, जो लिस्ट होती है ऑप्शंस ही वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी दैट यू कैन अप्लाई टू द लेयर, जो आप अप्लाई कर सकते हो लेयर पे। देन व्हेन यू सिलेक्ट एन इफेक्ट, और जब आप सिलेक्ट कर लोगे एक इफेक्ट को जो आपको अपनी लेयर पे ऐड करना है, लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने लाइक दिस। मेक द रिक्वायर्ड सेटिंग्स, आपको रिक्वायर्ड सेटिंग्स करनी है, देन ओके पे प्रेस कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन thoroughly. Thank you for today's class.